Hi friends, today we are going to start Indian Penal Code 1860, in which section 1 says title and extent of operation of the code. Every act and code tells about in a first section that title and extent of operation of the code. Obviously, you know the title is the Indian Penal Code 1860 and the extent is whole over India. Now, the word called the state of Jammu and Kashmir has been now revoked from it, because we know according to article 370 of Indian constitution we have already revoked the special status of Jammu and Kashmir. That's why the Indian penal code will be applied to whole of the India. Okay, so that is the section 1. After that, section 2 we will start with the second section says that punishment of offenses committed within India. 2 points you have to remember. That first is the Indian penal code is applied for two factors. First is the offense should be commenced in India and the territory of India. Okay, within India we say this is like that. And the second point is the act should be done by citizen of India. Okay, both factors are very important. Okay, if first factor we will see, I'll explain it and then we will read the section. First point, the act should be done within India. Suppose in the territory of India we can take the Maharashtra. Okay, in Maharashtra, if a man called A is citizen of India, okay, he done a crime under anything, means like in a Maharashtra he commenced a crime. After that, the IPC will be applied to him for the both reason. First point, for because he have done the act in territory of India, and second, he is the citizen of India. Both things are applied to him, that is why it is punishable. Okay, second point we will see, if a man came from England and he did the crime in Maharashtra. Here two factors we will see. First is whether it has been done in a territory of India. Yes, it has been done in a territory of India. First point. And second point, whether he is citizen of India. No, he is not a citizen of India. So tell me whether IPC will be applied. Yes, IPC will apply. This is either condition or condition. First, it should be territory of India, और इट शुड ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. दोनों में से एक कोई तो कंप्लीट होना चाहिए. तो यहाँ पे ये फैक्टर अप्लाई हो जाता है कि ये क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में कमिट हुआ है. ओके, सो द IPC विल बी अप्लाइड फॉर दैट ऑल्सो. तो दोनों में से कोई भी एक प्रोविजन कंप्लीट हुआ तो या तो वो इंडिया की टेरिटरी में हुआ, चाहे वो किसी ने भी किया हो, इंडियन सिटीजन ने किया हो, फॉरेनर ने किया हो, और या फिर कोई भी देश से आया है हमारे यहाँ पे और वो अनलॉफुली रह रहा है विदाउट पासपोर्ट और एनीथिंग, फिर भी उसके लिए IPC अप्लाई होगा. बस वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर होना चाहिए. ठीक है, अभी इसमें दिया क्या है, पढ़ते हैं हम लोग. पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया. एवरी पर्सन शाल बी लायबल टू पनिशमेंट under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India. Okay, हर एक वो पर्सन वो लायबल होगा पनिशमेंट के लिए अंडर दिस कोड. मीन्स ये IPC कोड के अंडर उसको पनिशमेंट होगी. नॉट अदरवाइज मीन्स इस एक्ट के अलावा कोई भी दूसरा एक्ट नहीं लागू होगा, IPC के अंडर उसको सजा होगी. ओके, इसलिए लिखा है नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और omission contrary to the provisions thereof of which. मतलब ओमिशन जो है या फिर एक्ट कोई भी जो अनलॉफुल है. अभी एक्ट और ओमिशन मतलब मैं आपको समझाती हूँ. एक्ट मतलब कोई भी एक्ट कमिट किया जिससे वो अनलॉफुल हो. ठीक है, जैसे किसी का खून करना हो, किसी का रेप कर दिया, या फिर किसी को ग्रीवियस हर्ट कर दिया. ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सीधा सीधा क्राइम हो जाएंगे. ठीक है, उनके लिए
क्या है, पनिशमेंट है। लेकिन अगर ओमिशन हम लोग देखेंगे तो ओमिशन मतलब जो उसकी जिम्मेदारी है वो उसने पूरी नहीं की। जैसे अगर कोई महिला है, वो रेप का केस लिखाने पुलिस स्टेशन में जाती है, लेकिन उसका एफआईआर लिखा नहीं जाता, मतलब पुलिस ऑफिसर ने या फिर पुलिस ने जो भी एफआईआर लिखवा रहा था वहाँ पे, ठीक है, लिख रहा था वहाँ पे, तो वो उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो वो ओमिशन हो गया, उसको भी पनिशमेंट मिलेगा आईपीसी के अंडर। इसीलिए उस यहाँ पे बोला गया है कि फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन, ठीक है। और वो कहाँ होना चाहिए, विद इन इंडिया। नीचे लिखा है देखो, कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ, मतलब प्रोविजंस जो दिए गए हैं उससे वो कॉन्ट्ररी हुआ, मतलब जो करना चाहिए था उसके एकदम उल्टा कर दिया, ठीक है। ऑफ विच ही शाल बी गिल्टी विद इन इंडिया, अगर वो इंडिया के विद इन, इंडिया के टेरिटरी के अंडर किया गया है तो सेक्शन 2 के अनुसार उसको पनिशमेंट मिल जाएगी, ठीक है। ये सेक्शन 2 बोलता है। अभी सेक्शन 3 देखते हैं। पहले हाँ सॉरी, एक पॉइंट रह गया, पनिशमेंट सेक्शन 2 में कमेंट्स दिया गया है बेयर एक्ट में, कुछ कमेंट्स है वो इम्पॉर्टेंट है, वो बस मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहला है कि पहले ये एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर, ये एक्चुअली मुझे सेक्शन 1 में ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं अभी बता रही हूँ। तो यहाँ पे पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा गया था, लेकिन वो 34th एक्ट जो लाया गया 2019, यू नो कि हम लोग ने कैसे 317 हटाया, कभी हटाया तो 5 अगस्त 2019 को हटाया, ठीक है। और ये जो एक्ट था पूरे साल में कितवा एक्ट था, तो 34वां एक्ट लाया गया था। 34वां एक्ट जब लाया गया तो उसके हिसाब से हम लोग ने ये जो स्टेटस है वो हटाया, तब से ये वर्ड भी हट गया आईपीसी से, ठीक है। तो ये कमेंट में पहला पॉइंट बोलता है। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि ये जो एक्ट है ना वो कब से लागू हुआ, तो वो लागू हुआ है 1st डे ऑफ मे 1861, मतलब 1 मई 1861 को ये लागू हुआ है। बना तो है वो 1861 में, सॉरी 1860 में, दो करेक्शन करो प्लीज़, सॉरी 1860 में बन के पूरा हुआ, लेकिन 1 मई 1861 को ये लागू हो गया, ठीक है। और थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप बोलोगे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के लिए बनाया है, तो आज भी हम लोग इसको क्यों अपना रहे हैं। तो पहला बात यह है कि जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब हमने क्या किया, कुछ जो एक्ट्स थे इंडिया के लिए बनाए गए उसमें से कुछ प्रोविजंस ले लिए। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 1935 का एक्ट का बहुत ज़्यादा ये है कंट्रीब्यूशन है। वैसे ही इंडियन पिनल कोड में हमने क्या कर लिया, उसमें नया नहीं बनाया, बस उसमें कुछ चीज़ें बदल दी और वो हमने लागू कर दी। और वो लागू करने का पावर हमें किसने दे दिया, उस वक्त के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने हमको ये अधिकार दे दिया। और ये किसके तहत लिख के दे दिया उन्होंने, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट उन्होंने 15 अगस्त 1947 को हमारे हाथ में दे दिया। उसके सेक्शन 9 और सेक्शन 18 में लिखा था कि जो भी हमारे एक्ट है वो आप अपने इंडिया के लिए लागू कर सकते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही हम लोग ने इंडियन पिनल कोड को लागू कर दिया। और जैसे ही हमारा संविधान बन के पूरा हुआ, उसमें भी हम लोग ने एक आर्टिकल जोड़ दिया 372, उसमें लिखा गया है कि हम उनके क्या कर सकते हैं, एक्ट जो है वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर वैसे के वैसे ला सकते हैं, या फिर हम लोग उसको ख़त्म करके नया ही ला सकते हैं। तीनों चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ऐसा अधिकार हमारे पार्लियामेंट को मिल गया है, ऐसा लिख के हमने लिख दिया आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हमने लागू कर दिया हमारे संविधान को 26 जनवरी 1952, सॉरी 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। और उसी के साथ 372A को भी याद रख लो। वैसे तो यहाँ पे वो उसका कोई संबंध नहीं, फिर भी आप अभी इधर ही एक आर्टिकल याद हो जाएगा, इसके लिए बता रही हूँ। उसमें ये बताया गया है कि आगे से जब भी कोई भी हमारा एक्ट, ठीक है, लागू कराना होगा इंडिया में, तो वो राष्ट्रपति की मर्ज़ी से वो लागू हो सकता है। क्योंकि आपको पता है जब तक राष्ट्रपति का आखिरी साइन उसके ऊपर नहीं होता है ना, तब तक वो एक्ट पूरी तरह बना ऐसा हम लोग मानते ही नहीं है। तो इसलिए वो पावर भी हम लोग ने प्रेसिडेंट को दे दी आर्टिकल 372A के तहत, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग ने सेक्शन 1 सेक्शन 2 भी कंप्लीट कर लिया था, और उसके साथ हम लोग ने उसके कमेंट्स भी पढ़े, ठीक है। याद रखना डेट उसकी लागू होने की 1 मई
सॉरी 1 मई 1861 है, ठीक है। इस तरह हम लोग ने सेक्शन 2 देखा। अभी सेक्शन 3 एक बार देख लेते हैं। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड मतलब अपने इंडिया के बाहर, ठीक है, बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। पर क्या हुआ है, बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। इसको पढ़ के देखते हैं। एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डील्ड विथ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। मतलब अगर कोई इंडिया का सिटीजन है, जैसे सिटीजनशिप है हमारे पास, सबके पास ही है हम सिटीजनशिप, जैसे जो जिनके आप सिटीजनशिप के कुछ आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर नहीं पढ़े तो हम लोग आगे जाके देखेंगे। हम तो है ही इंडिया के नागरिक है। हमारे माँ बाप, हमारे जो माता पिता से लेके दादा दादी सबको ही यहाँ पे रहा हुआ है और हमारे पास सिटीजनशिप है इंडिया की, ठीक है। तो हम में से कोई भी इंसान अगर कोई भी क्राइम इंडिया के बाहर जाके भी करे, चाहे अमेरिका में करे, कनाडा में करे, ऑस्ट्रेलिया में करे, ऑस्ट्रिया में करे, या फिर जाके इंग्लैंड में करे, नॉर्वे में करे, लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो इंडिया में करा ही नहीं, मैंने तो बाहर जाके करा है और मैं उधर जाके मैं करूँगा तो मेरे को सज़ा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसको भी सज़ा मिलेगी। ऐसा ही माना जाएगा कि वो एक्ट है वो इंडिया में ही किया गया है, ऐसा मान के उसको सज़ा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन है। इसीलिए वो क्या होगा, सेक्शन 3 के तहत उसको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी, ठीक है। मतलब 2 कंडीशन मैंने बताई थी, वो हमेशा याद रखना। अगर वो सिटीजन है इंडिया का, चाहे वो किधर भी गुनाह करे तो भी उसको आईपीसी लागू होगा। और दूसरा बात, अगर कोई फॉरेनर भी है लेकिन इंडिया में आके क्राइम करे तो भी उसको सज़ा मिलेगी। ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर होती है या फिर दोनों भी चीज़ें हुई तो भी उसको क्या होगा, पनिशमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर समझो वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर होता ही नहीं, ठीक है, इंडिया के टेरिटरी के अंदर होता ही नहीं, कहीं और होता है, इंडिया को छोड़ के बाहर होता है, ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको मालूम है अमेरिका में कोई क्राइम होगा तो उसको इंडियन पिनल कोड क्यों लागू होगा, सही है ना। तो उसको नहीं लागू होगा। बस हाँ, वो हमारे सिटीजन ने नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। अमेरिका में हमारे सिटीजन ने नहीं किया होना चाहिए, उनके सिटीजन ने कर दिया तो हमारा आईपीसी लागू नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। पर इसमें एक और इसकी बात है, देखो ट्रिक की। इसमें ये सवाल ज़रूर बन सकता है कि समझो अगर हमारा सिटीजन वहाँ पे चला गया, ठीक है, हमारा सिटीजन वहाँ पे चला गया, अभी इंडिया की टेरिटरी तो है नहीं, अमेरिका में चला गया समझो, और वहाँ पे जाने के बाद उसके साथ कोई क्राइम हुआ, उसके साथ, ठीक है, किसी ने उसके साथ क्राइम करा, तो फिर उसको सज़ा मिलेगी कि नहीं आईपीसी के तहत? तो नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोविज़न हम लोग ने स्टार्टिंग से पढ़े। क्राइम करने वाला सिटीजन होना चाहिए या तो वो क्राइम इंडिया में होना चाहिए। जिसके साथ क्राइम हुआ है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा और वो बाहर होगा हमारे टेरिटरी से, तो उसको ये आईपीसी लागू नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। ये इतना मैंने आपको बता दिया। ये हो गया सेक्शन 3। अभी सेक्शन 4 देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। फर्स्ट है, द प्रोविजंस ऑफ द कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। सेकेंड, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be. Third है, any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India। मतलब एक एक मैं बताती हूँ। पहला है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिटीजन ऑफ इंडिया चाहे कहीं पे भी वो गुनाह करे, इंडिया में करे या इंडिया के बाहर जाके करे, तो भी उसको सज़ा मिलेगी। ये पहला पॉइंट है, वो तो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो मैंने बस वो आपको पहले ही समझा दिया था। बस उसका प्रोविज़न 4th में दिया था, सेक्शन 4 में, वो तो वो पहला बोल देता है। लेकिन दूसरा इम्पोर्टेंट है, ये बोल देता है देखो कि अगर कोई एक्ट है वो
कि हमारी शिप पे होता है, लेकिन समझो शिप है वो चाइना के साइड से गुजर रही है, वो हमारे यहाँ पे है ही नहीं, हमारे समुंदर जो हमारे आजू बाजू में है, हमारे टेरिटरी में आता है, उसमें है ही नहीं। वो घूमते घूमते जहाज चाइना सी में चला गया, तो और उसके ऊपर, उस शिप के ऊपर किसी ने क्राइम कर दिया, तो उसको आईपीसी अप्लाई होगा क्या? तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा शिप है, उसको हम हमारी टेरिटरी ही मानते हैं, हमारे टेरिटरी का ही अंग मानते हैं, चाहे वो कहीं पे भी जाए, चाइना सी में जाए, अटलांटिका में जाए, पैसिफिक महासागर में जाए, कहीं पे भी जाए, वो हमारा ही भाग हम लोग मानते हैं। तो उसके ऊपर भी कोई भी क्राइम होता है, चाहे वो अपना सिटीजन करे या फॉरेनर करे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग ने एक प्रोविजन देखा था सेक्शन 2 में, हमारी टेरिटरी में आके किसी ने भी किसी के साथ क्राइम किया तो उसको सज़ा मिलेगी, उसको आईपीसी लागू होता है, क्योंकि वो टेरिटरी का उधर पॉइंट लागू होता है। तो वो हमारी शिप हमारी टेरिटरी है, चाहे वहाँ पे कोई भी क्राइम करे, चाहे कोई भी आके करे, हमारा सिटीजन करे या फॉरेनर करे या कोई भी करे, उसको आईपीसी अप्लाई होगा। तो वो हो गया, तो क्या हो जाएगा? क्राइम हो जाएगा, वहाँ पे आईपीसी लागू होगा, ऐसा सेक्शन 4(2) में बोला गया। सेक्शन 4(3) में क्या बोला गया है? देखो, कोई अगर बाहर बैठा हुआ है या हमारे इंडिया में ही बैठा हुआ है, ठीक है, और अगर समझो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है और वो हमारे जो कंप्यूटर रिसोर्स है उसको हैक कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन को थ्रेट पहुंचा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है और टारगेट कर रहा है हमारे कंप्यूटर रिसोर्स को, चाहे वो कहीं पे भी बैठा हो, लेकिन हमारे इंडिया के कंप्यूटर में यानी कि हमारी टेरिटरी ही लागू होगी। हमारे यहाँ पे रखे हुए कंप्यूटर को, हमारे सर्वर को अगर वो क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है, तो भी उसको आईपीसी लागू होगा, ऐसा सेक्शन 4 का सब क्लॉज 3 बोलता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। इसके साथ एक्सप्लेनेशन दी गई है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने स्लाइड डाली नहीं है वो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बेर एक्ट में दी गई है। द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ़ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। अभी ऑफेंस क्या होता है? वो सारे एक्ट, ठीक है, इंडिया में कमिटेड, इंडिया के क्या हो गए, बाहर कमिटेड हो गए, अगर वो क्या हो गए, इंडिया में कमिट हो गए, तो वो क्या है, पनिशेबल अंडर दिस कोड, वो इस कोड में क्या है, पनिशेबल हो गए हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स के कहाँ से लेंगे? तो हम लोग शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन केस क्लॉज के ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो सॉरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्ट है, आईटी एक्ट ही कंप्यूटर को लागू होता है ना, बराबर ना। तो आईटी एक्ट का सेक्शन 2 में वहाँ पे दिया है कंप्यूटर रिसोर्स का मीनिंग क्या है, वही मीनिंग हम लोग आईपीसी में लेंगे, ऐसा बोला गया है एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, ये बेर एक्ट का है। बेर एक्ट में एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, एक देख लेते हैं हम लोग। एक क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन क्या करता है, मर्डर जाके युगांडा में करता है। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। वो कहीं पे भी हमको मिल गया, समझो वो एक गया युगांडा में जाके मर्डर करके आया और वो इंडिया में अभी छुप गया है, तो इंडिया में उसको आईपीसी लागू होगा। ना कि ऐसा बोला जाएगा कि युगांडा में जाके किया है ना, तो वो दूसरे देश का है, तो मतलब दूसरे देश में जाके किया है तो सिटीजन ऑफ इंडिया वही, तो उसको आईपीसी लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते, उसको आईपीसी लागू होता है, ऐसा इलस्ट्रेशन में बोला गया है। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।